تحریر نیاز احمد کھوسا۔ قسط نمبر 5۔ کچھ گھروں کے لیے ایک رہنما تحریر۔ اپنے فیملی کے ساتھ اس طرح رہیں جیسے تسبیح کے دانے۔ اپنے فیملی کی عزت اور قدر کریں اور ان سے دلی محبت کریں۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے دفتر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا التمش، جو آج کل الحمدللہ لندن میں LLB کر رہا، وہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے مجھ سے گلے مل کر پیار کرنے کے بعد اسکول جاتا تھا۔ اس دن التمش جب مجھ سے گلے ملا تو میرے گال تپ رہے تھے۔ التمش نے مجھے کہا کہ بابا آپ کو بخار ہے، یہ کہہ کر وہ بڑی معصومیت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پیر دبانے لگ گیا۔ میں منع کرتا رہا مگر وہ میرے پیر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے بات گائمانے کی کوشش کی اور التمش سے کہا بابا اسکول سے لیٹ ہو رہے ہو، تو التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تصویر میں التمش اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے مجھے جواب دیا، بابا میرا سارا دھیان توجہ آپ کی طرف رہے گی تو میں اسکول میں کیسے بیٹھ پاؤں گا۔ زندگی میں مجھ پر 4 شخصیات کا انفلوئنس اثر ہے۔ ان کی کسی بھی بات کو ٹالنا یا انکار کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، والدہ۔ حالانکہ بچپن میں والدہ نے مجھے اور بہنوں کو بہت مارا، والد صاحب نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ والدہ جب نہانے کا بولتی تو میں اور بہنیں سمجھ جاتے کہ آج مار پڑنی ہے اور ادھر ادھر ہو جاتے اور والدہ کو پکڑائی نہ دیتے۔ پھر والدہ نے یہ طریقہ نکالا کہ پہلے جا کر باہر والے دروازے کو اوپر والی کنڈی لگاتی اور پھر گھومتے پھرتے مجھے یا کسی بہن کو پکڑ لیتی اور واش روم میں لے جا کر نہلاتے ہوئے صابن لگانے کے بعد تھپڑوں سے ہماری دھلائی شروع کر دیتی، اور اماں کو اگلا پچھلا ریکارڈ یاد آ جاتا کہ ایسا کیوں کیا تھا، ویسا کیوں کیا تھا۔ اب خود سوچیں کہ پانی سے تر صابن لگے بدن پر تھپڑ کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک خاص بات یہ کہ والد صاحب والدہ کی اس عادت سے واقف ہو گئے تھے۔ ہماری چھوٹی بہن کے نہانے کے وقت خود کھڑے رہتے اور والدہ کو منع کرتے رہتے کہ مت مارنا، مگر والدہ نہ کرتے، 2-4 ہاتھ پھر بھی اس کو دکھا دیتی۔ دوسرا، سب سے چھوٹی بہن جو ڈاکٹر ہے، والد صاحب کی وفات کے بعد وہ مجھ سے زیادہ اٹیچ رہے۔ میں اگر نوکری کے سلسلے میں 2-4 دن کے لیے گھر سے باہر ہوتا تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ جب بھی گھر واپس آتا تو وہ بخار میں تپ رہی ہوتی اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بغیر کسی دوائی کے 1-8 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتی تھیں، ورنہ والدہ بتاتی تھیں میڈیسن سے بھی اس کا بخار کم نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر مہراب خان۔ مہراب خان اتنا دل کا بھلا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر رو دیتا تھا۔ جب میں گھر نہ ہوتا روتا ہی رہتا کہ بابا کہاں ہے، مجھے بابا کے پاس لے چلو، اور اب ماشاءاللہ 4 بچوں کا باپ ہے اور ایک اچھا لو نوئنگ وکیل ہے، مگر مجھے دن میں اگر 100 مرتبہ فون پر بات نہ کرے تو اس کی رات نہیں ہوتی تھی۔ مہراب خان کی بڑی بیٹی مجھ سے بولتی ہے کہ فون پر کس طرح مہراب خان بچوں کی طرح آپ کو بار بار بابا بابا بولتا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر التمش۔ التمش جب سکھر میں پیدا ہوا تو میری پوسٹنگ کراچی میں تھی۔ اس کی بھی یہی عادت تھی رونا۔ جب میں سکھر میں ہوتا تو وہ خوش ہوتا، ورنہ تھوڑی تھوڑی بات پر چڑھتا۔ میں نے محسوس کیا یہ گھر میں اکیلا ہے، اس کے سارے بھائی کراچی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو التمش کی والدہ کی مخالفت کے باوجود میں التمش کو کراچی لے گیا۔ وہاں التمش مجھ سے مانوس ہوتا گیا۔ اس وقت التمش 4 سال کا تھا اور وہ نیند میں اپنے کمرے سے نکل کر میرے ساتھ سو جاتا تھا، پھر صبح کو مجھ سے پوچھتا تھا کہ بابا رات کو اب مجھے اپنے کمرے میں اٹھا کر لائے ہو، اور میں اس کو پیار کرتے بولتا تھا کہ ہاں بیٹا۔ التمش بچپن سے آج تک کچھ دن مجھے نہیں دیکھے گا تو کھانا پینا چھوڑ دے گا اور کچھ ہی دنوں میں بستر سے لگ جائے گا، اور پھر مجھے اسے پیار کے ساتھ ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ التمش اس طرح زبان کا پکا بچہ ہے کہ اگر مجھے 40-50 لاکھ کی ضرورت پڑے تو اپنے دوستوں سے پیسے مجھے لے کر دیتا ہے اور ان کو وقت پر واپس بھی کر دے گا۔ التمش اور سلمان کو پیدائشی طور کڈنی میں پرابلم ہے۔ شروع سے لے کر کڈنی سینٹر کراچی میں ڈاکٹر صاحب دونوں کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس بیماری کا اینڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر اس بیماری کا مستقل علاج کیا جائے تو 18 سال کی عمر تک یہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ سلمان بچپن سے آج تک بہت شرارتی اور میری اور مہراب خان کی طرح بہت اور رسپانسبل بچہ ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھ لیا، وقت پر دوائی کھا کر 18 سال کی عمر تک اپنی بیماری کو زیرو کر چکا۔ باقی التمش اپنے موڈ کا ہے، وہ میری والدہ کی طرح استاق میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح دوائی نہ کھاؤں۔
अभी 2 साल पहले 2021 की बात है। अल्तमश बीमार हो गया। मैंने सक्खर वाले घर में डिस्पेंसर को बुलाकर उसे ड्रिप लगवाकर दरवाजे पर डिस्पेंसर को छोड़ने गया। वापस अल्तमश के कमरे में आया तो अल्तमश की ड्रिप खाली थी। मैंने अल्तमश से पूछा कि ड्रिप कहाँ गई। अल्तमश ने जवाब दिया कि बाबा पूरी हो गई। मैंने कहा कि यार आइंदा में अब की ड्रिप पूरी होने तक कहीं नहीं जाऊंगा। अब अल्तमश की ड्रिप पूरी होने तक खुद बैठना पड़ता है। मैंने अपने मुस्तकबिल की प्लान इस तरह की थी कि वालिदा और बीवी को सक्खर में रखा ताकि सक्खर में स्कूल जो मेरे वालिद साहिब ने खोला था और दीगर प्रॉपर्टी की नगेबान होती रहे, और 1996 में कराची तबादला करवा लिया और बेटों को जनाब खुर्शीद अहमद शाह के मशवरे पर क्लिफ्टन में एक तालीमी माहिर मिस्टर तामोर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी की डगर यूं ही चलती रही। मेरी आधी फैमिली सक्खर में थी और मैं बेटों के साथ कराची में था। मेरे बेटे मुझसे ज्यादा अटैच इसलिए भी हैं, मैं उनका वालिद भी हूं और मां भी हूं। गलत किया सही किया। सक्खर की प्रॉपर्टी और कारोबार को इंटैक्ट रखने के लिए वालिदा और बीवी को सक्खर में रखा ताकि सक्खर से मेरा ताल्लुक खत्म ना हो, और बच्चों की तालीम की खातिर कराची की नौकरी में खुद को एडजस्ट किया और नौकरी इस तरह से की कि अपने अफसरान का मरकज निगाह और मजबूरी रहा। बाकी आइंदा किस्त में। किस्त नंबर 6। जिस तरह हम एक फलदार पौधा लगाते हैं तो इसमें यह शर्त होती है कि पौधे की निगहबानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक करनी होती है। अगर कोई ये समझता है कि बस पौधा लगा देना ही काफी है और वो खुद ब खुद बड़ा है कर फल देगा, तो ऐसे लोग हमेशा घाटे का सौदा करते हैं। ऐसे ही एक फलदार पौधे की कहानी जिसकी परवरिश में कभी गफलत नहीं की गई। अक्लमंद लोगों के लिए एक बाप की कहानी जो वालिद के साथ एक पुलिस अफसर भी था। रिश्तों को संभालने की एक दिलगुदाज हकीकत जो आपको मुद्दतों याद रहेगी। एक दिन मैं घर पर ही था। मेरा बेटा फसी बाहर से आया और मेरे सामने से गुजरकर अपने कमरे में चला गया। मैंने फसी की चाल में कुछ फर्क महसूस किया। थोड़ी देर बाद फसी कमरे से बाहर आया और मुझे बताया कि बाबा मेरे एक बाजू में दर्द हो रहा है। मैंने पूछा कि बाजू को क्या हुआ है, तो फसी ने जवाब दिया कि बाबा गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कूले में कोई मोच आ गई है। मैं फसी को घर के करीब ही जियाउद्दीन अस्पताल ले गया। इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने एक्सरे कराने का कहा। एक्सरे में पता चला कि फसी का कूला उतरा हुआ है। वो गालिबन इतवार का दिन था। अस्पताल वालों ने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को घर से बुलवाया और कुछ ही देर में डॉक्टर ने अपना काम कर दिया और अस्पताल का अमला व्हील चेयर पर फसी को बिठाकर बाहर लाए। फसी को देखकर मेरी हंसी निकल गई और मैंने फसी की 2-4 तस्वीरें लेकर फेसबुक पर इसी वक्त अपलोड कर दें। हम अभी अस्पताल में ही थे, बिल वगैरह अभी अदा नहीं किया था कि फसी ने मुझसे पूछा कि बाबा अपने मेरी तस्वीरें फेसबुक पर लगा दी हैं क्या, और मजीद बताया कि मुझे दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ है। मैंने खुश मिजाजी से फसी को कहा कि बाबा क्या हुआ जो दोस्तों को पता चल गया, वैसे कल अपने स्कूल तो जाना है, वहां तो आपके दोस्तों को पता चल ही जाना है। चिल्लू उनको एक दिन पहले पता चल गया और उसने बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मैं दफ्तर गया। वहां मुझे एक दोस्त एसएसपी का फोन आया कि कुछ दोस्त आए हैं, उनके बच्चों की लड़ाई हुई है, वो मुझे आपके पास साथ चलने के लिए बजिद हैं। लेकिन मैंने उनको बताया खुसो साहिब एक हकीकत पसंद आदमी है, सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, आप लोग चले। खोसा साहिब आपका मसला खुश असलूबी से हल कर देंगे। मैंने इनको कहा कि आप भेज दें, मैं उनसे मिल लेता हूं। 1-2 घंटे बाद इसी एसएसपी साहिब के हवाले से 8-10 बंदे मेरे पास आए और उन्होंने डरते डरते बताया कि कल हमारे बच्चों का आपके बेटे के साथ झगड़ा हो गया है, हम बच्चों के वालिदैन हैं, अब से मुआफी तलाफी के लिए आए हैं, हमें खदशा है आप कोई कार्रवाई या पर्चा वगैरह ना करवा दें। बच्चों की लड़ाई है, हम और हमारे बच्चे मुआफी के लिए हाजिर हुए हैं, बच्चों से गलती हुई है, हम वालिदैन इसकी मुआफी चाहते हैं। मैं तो फसी की लड़ाई के मुतालिक बिल्कुल ब्लैंक था और मुझे गुस्सा भी आया कि फसी ने ऐसा क्यों किया है। मैं ये वाज़े कर दूं कि मेरी आधी फैमिली सक्खर और आधी फैमिली कराची में सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तालीम की खातिर रह रहे थे और मेरा कराची में पोस्टिंग का मकसद सिर्फ बच्चों की तालीम ही था। इसका यह मतलब तो हरगिज नहीं कि मेरे बेटे पुलिस के बिलबोते पर दूसरे लड़कों से लड़ते रहें और उनके वालिदैन मुझसे मुआफिया मांगें, मैं उनसे बच्चों की गलतियों की खातिर इन शरीफ और सफ़ेद पोश लोगों से लड़ाई लड़ूं। मुझे इन वालिदैन के सामने बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैंने चाय बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स से इनकी तौज़ा की और लड़कों से पूछा कि लड़ाई क्यों हुई।
लड़कों ने बताया कि क्लिफ्टन में एक होटल के बाहर हम 4 दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे। फसी भी अपने 3 दोस्तों के साथ था। फसी ने समझा कि हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बात पर लड़ाई हुई। अब यकीन करें, मैंने लड़कों को शाबाश दी और कहा कि आपने ठीक किया। मैंने लड़कों से पूछा कि आपको किसने बताया कि वो मेरा बेटा है। लड़कों ने बताया कि हमारा इस होटल में काफी आना जाना है और फोन पर भी हम होम डिलीवरी मंगवाते हैं। लड़ाई के बाद होटल वाले ने हमें फोन करके बताया कि अब जिस लड़के से लड़े हो वो एसएसपी का बेटा है और आपका नाम बताया। होटल वाले के फोन के बाद हम डर गए और रात अपने घरों में नहीं रुके और अपने वालिदैन को इत्तला कर दी कि हमसे ये हरकत हो गई है। बहरहाल मैंने वालिदैन से माजरत की और कहा कि कसूर मेरे बेटे का ही होगा, क्योंकि वो एसएसपी का बेटा है। इसके दिमाग में होगा कि मुझे लड़ने का लाइसेंस हासिल है, मुझे कौन कुछ बोल सकता है। उनके जाते ही मैंने अपने गान मैनों से पूछा कि कल फसी के साथ कोई गान मैन था। तो फिदा गान मैन ने मुझे बताया कि साहिब, कल फसी साहिब के साथ बिलाल गान मैन था और आज बिलाल का ऑफ है। मैंने ऑपरेटर को कहा कि बिलाल को दफ्तर बुला लो। थोड़ी देर बिलाल दफ्तर आ गया। बिलाल से चला भी नहीं जा रहा था। बिलाल को इतनी मार पड़ी थी। बिलाल से मैंने पूछा कि कल क्या हुआ था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बिलाल ने जवाब दिया कि सर, फसी साहब ने मुझे बोला था कि बाबा को पता ना चले वरना वो गुस्से होंगे। बिलाल ने वही बात बताई लड़ाई की जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं। मजीद ये बताया कि फसी के दोस्त लड़ाई के बीच में नहीं आए, वो खड़े तमाशा देखते रहे। मैं बीच आया तो उन्होंने फसी साहिब को छोड़कर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं रोड पर उल्टा गिर गया तो साहिब इन लड़कों ने मुझे पीछे से बहुत मारा और बड़े ठुड्डे मारे। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बिलाल ने मजीद बताया कि साहिब वो 4 थे। पहले तो उन्होंने फसी साहिब को मारा और उसका हाथ मरोड़कर इसको नाकारा कर दिया। फिर साहिब मैं अकेला था। मैं अपना चेहरा बचाने के लिए रोड पर उल्टा लेट गया तो उन्होंने मुझे बहुत कोटा। मैंने बिलाल को कहा कि अच्छा हुआ तुम दोनों की अच्छी दालेई हुई है। मुझे आज भी बिलाल की ये बात याद करके हंसी आती है कि साहिब लड़कों ने मेरे पिछवाड़े पर लातों से बहुत मारा और तेड़ी भी मारे। रात को मैं घर गया और फसी की क्लास ली। वो भी शर्मिंदा था। मुझ में ये बड़ी बुरी आदत है, मैं मामलात को एन एड्रेस्ड, किसी भी मामले में कुछ भी न करना और प्रॉब्लम को वैसे का वैसे रहने देना। इससे मसाइल जन्म लेते हैं, नहीं छोड़ता। मैंने सोचा कि अगर फसी को कुछ नहीं कहा तो बाकी बेटे भी ये समझेंगे कि फसी ने जो कुछ किया वो सही किया और हमको भी लोगों से इसी तरह डील करना चाहिए। बाबा उन बातों पर हमारी तरफदारी करता है या खामोश रहता है। मैंने गुस्से में फसी को किसी कैडेट कॉलेज में दाखिला का सोचा कि वहां इसको पता चले कि घर की जिंदगी और हॉस्टल लाइफ में क्या फर्क है। मेरा यह फैसला गलत था। बच्चों को इंटर तक घर में ही रखना चाहिए। बच्चों को तो किसी भी सूरत और हालात में केजी से लेकर कॉलेज तक अपने साथ घर में रखना चाहिए। फसा का दाखिला कैडेट कॉलेज में हो गया और मेरा 4 नंबर बेटा बुरहान भी जिद करके और मुझे छोटी बहन मेहराब खान और अल्तमश से सिफारिशें करवाकर उसने भी कैडेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। बुरहान बहुत सादा, कम गो और क्यूट बच्चा है। बुरहान अपनी सादगी की वजह से ये समझ रहा था कैडेट कॉलेज में फसी को नेवी का समुद्री जहाज तो मिल ही जाएगा, मैं कराची में रहकर कुश्ती से महरूम ना रह जाऊं। कैडेट कॉलेज में मुझे कम से कम नेवी की कुश्ती तो मिल ही जाएगी। बुरहान बचपन से फसी की कॉपी करता था और हमारी सारी फैमिली बुरहान को प्यार में कॉपी कैट के नाम से पुकारते थे। कैडेट कॉलेज से फसी का फोन आया कि बाबा फलां तारीख को कैडेट कॉलेज इंतजामिया वालिदैन को मिलने के लिए अलाउ करते हैं, अगर आप आना चाहते तो हमसे मिलने आए। बुरहान बहुत उदास है। मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कराची से खाना वगैरह लेकर कैडेट कॉलेज गए। वहां बुरहान को देखा तो उसकी कुश्ती मिलने की सारी खुशी खत्म हो गई थी और सारा वक्त वो खुद को रोने से रोकता रहा। मीर अलिफ दिल ऐसा कर रहा था कि बुरहान को अपने साथ वापस ले जाऊं, मगर इस दिन मुमकिन नहीं था। यहाँ ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि बुरहान ने अपनी शराफत की वजह से मुझे एक मर्तबा भी नहीं कहा कि मैं हॉस्टल में तंग हूँ। शायद वो इसलिए बोल ना पा रहा था कि वो तो अपने शौक और मर्जी से गया था कैडेट कॉलेज कुश्ती लेने। मैंने फसी को कहा अब बुरहान के लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देकर छठी लेकर बुरहान को कराची ले आओ। इस तरह बुरहान का कुश्ती मिलने का ख्वाब पूरा ना हो सका। बुरहान की तस्वीर देखकर अब खुद अंदाजा लगाएं कि बुरहान अपने रोने पर कैसे कंट्रोल कर रहा था।
बरहान ने कैडेट कॉलेज के तजुर्बे के बाद फंसी की कॉपी करने से तौबा की। तस्वीर में बुरहान की कराची से जाते हुए कितना खुश है। सलमान का फंसी और बुरहान का कराची से जाने पर रोने की तस्वीर और कैडेट कॉलेज में हमारे पहली बार जाने की तस्वीर है। अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र हैं कि मैंने अपने बच्चों से प्यार और तरबियत में कोई गफलत नहीं की। बाकी फंसी ने जितना कराची के स्कूल में पढ़ा था वो कैडेट कॉलेज में सारा खत्म है कर रह गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। फंसी आजकल कराची में वकालत कर रहा है और एडवोकेट रहमान गौस साहिब की मशवर फर्म में काम करता है। रहमान साहिब ने नैब के केसेस फंसी के हवाले किए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेहराब खान और फंसी लंदन से बार बैरिस्टर की डिग्री पास कर लें। बुरहान तो कॉपी कैट है, इसने भी बार के बगैर कैसे रहना है। लोगों के जहनों में ये सवाल जरूर आता होगा कि सारे बेटों को वकील क्यों बनाया है, तो इसका जवाब ये है कि ये मुझ पर खुर्शीद शाह साहिब का एहसान है कि उसने मेरे बेटे को क्लर्क की नौकरी की ऑफर देकर ये एहसास जगाया कि बेटों को नौकरी नहीं करवानी। एक दिन अल्लाह पाक के हुक्म, मर्जी और मंशा से ये मेरे बेटे इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के जज बनकर लोगों की बेलौस खिदमत करेंगे और मेरे नक्श कदम पर चलेंगे। वो दिन दूर नहीं है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बाकी अगली किस्त में।